welcome you all. Uh, Today we are going to discuss about fund accounting subject, right? So this was on demand, from many of industry professionals, right? So even a few people have commented on, other videos that I have uploaded on YouTube. So they were requesting, they were appealing like they wanted to have a session on fund accounting because uh, there are numerous opportunities having in fund accounting domain, right? And this is one of the biggest process and project that I would say in fund accounting part, right? And that is what most of the people were requesting, and still people are asking me to when I'm going to make video on fund accounting part. Yeah, I was busy, quite busy with my other stuff, so I could not invest some time on this video and all. But now finally I have some time, so that I have decided to put my at least 30 to 40-minute time on fund accounting part. This would be like orientation session on fund accounting, right? And we're gonna be discuss again different types of funds, as well as we're gonna be discussing a few important crucial elements of the fund accounting domain as well. So which will give you the at least basic idea. So how the project nature would be, right? Uh, on I would say the real time basis. Real time, it means most of people, guys, if you are the now, if you are the not part of this mutual fund industry or hedge fund industry or other fund industry, then might be you have just heard about the the definition, or I think the reconciliation part, that you must you have heard from someone, or you have read somewhere, but you don't know the deep knowledge about it, right? How the process would be, how the nature of a processing mechanism would be, what kind of roles and responsibilities you're going to be deal with when you are the part of mutual fund project or hedge fund project, right? So maybe you have that lots of questions in your mind, and that you're looking for the right answers, right? So definitely, in a one session, nobody can cover the entire project, or all the details. But definitely, uh, I would here announce that we'll make at least 2 to 3 sessions on fund accounting part, and we'll try to cover each and everything, right? So which will give you the from basic to advanced everything in details. So when you when you have a chance, and if you can go through this entire series of session, then you will have a complete knowledge, at least I would say not 100%, but at least 60 to 70%. You will have a knowledge, right, on a fund accounting part, that I'll ensure it, you here guys, right? And the the before go ahead with the same, just I wanted to reminding you, right? I have uploaded few videos on you on corporate action part. I have uploaded few videos on the basic accounting part, right? So those videos also that we can link to the fund accounting part as well, right? So we should also ensure that you guys have seen already those videos as well. Those are also very important. And this information is important to the freshers as well as the experienced candidate as well. If you're the part of your fund accounting, and if you're looking job in corporate action or other the other accounting and all, then still you can watch that videos. So that is very crucial information. You cannot find that information anywhere, right? So that is what I would request you guys. Please go through this all the entire sessions, right? Please watch my all the videos. If you don't want to like it, then don't do it. If you don't want to subscribe it, then don't subscribe it. Just at least try to watch it, right? So that is important, right? Because my ultimate goal is to give you the full complete package of knowledge to you, and that would be in free of cost, right? In exchange of that, I'm not expecting anything. In return of that, I'm not expecting anything. I have just humble request to you guys, just watch it, and if you like it, just forward to someone who those are seeking employment opportunities in investment banking domain and other domain as well. Even I have a plan already. I made a plan. I just wanted to have some time,
right? Accordingly, I'll shoot videos and upload it on, YouTube platform where you can access that. But give me some time as well, right? I cannot cover all the, series in 1 month or in 1 year. Even I cannot commit that as well because I have many other things that I have to do it. But even I'm trying my level best to, give some time on this, particular thing as well. But nevertheless, now we have a chance to why can't we discuss? Why can't we uh, give some traction on fund accounting as well? So we'll discuss it finally. Okay. So I'll not take much time, but I just wanted to uh, share one thing that with you guys. In last week I think, or last week that I would say, I had a training call with one of the international client, right, Helen. So she was from actually Germany, and she was looking uh, to have a train on investment banking part. And she had an interview with one of the reputed investment bank, and I had that opportunity to train her on investment banking and capital market stream. And it was fruitful or insight, I would say, or indeed discussion that I had with her. It wasn't kind of training at all. It was kind of Q&A session. Q&A means question and answer session. She had a lots of question, and I was just answering to her. And even I had given her lots of valuable information. And on the basis of that, she cracked the interview, right? And she paid me also, like around $20 she paid me, right? For a 2 or 3 hour session, right? It was a paid service. And again, if you guys are personally looking for the any kind of industrial placement, right? You can also book your appointment with me. I'll share my contact details with you, so accordingly we can discuss it, right? There would be like two options if you want to. There would definitely I'll charge some fees, but not would be like high amount. If you want to pay, you can pay half amount in advance, and you can book your appointment. Rest amount that you can pay, uh, that I would say, after you get placed somewhere, right? You're not. I'm asking to pay full amount, in one installment. Okay, so let's start. Okay, so what is fund and what is accounting, right? When we read this word, particular word combinedly, fund accounting, so it means like, because we know fund means it's a money, right? And what is mean by accounting? If you are from I would say commerce background, or the BB or MBA background, definitely you have heard this word in your the academics, like accounting, right? Accounting means it's a classifying or recording or summarizing the the financial data, right? Or interpreting the financial information, right? Or entering the such a data in a very systematic manner. So that would be the definition for accounting, if I'm not wrong, right? And what is meant by fund then? Fund, it's a vehicle, right? It's a that I would say it's just a vehicle, or it is just a pool of money, right? It is financial vehicle. Fund manager will pull the money from different investors, and they try to invest in the different variety of assets, right? Why they're gonna be investing like that way? The reason could be, there are investors who those are not Gani, or who those are not aware about market and market trends and market other factors, right, from fundamental analysis to technical analysis part. And that is what they don't want to go directly and invest in equity and all. They can go through with the fund accounting part, right? The second would be, if someone is looking for the minimum risk with the regular return, that I would say, right? So in this case also, that you can choose a mutual fund or hedge fund as well, right? Second, or the more reason would be like, even suppose if you want to suppose you are bearing views or heavy taxes at this point of time, and if you want to plan it accordingly, right, the fund manager gonna be help you, right? They will invest your money in government equities or government bonds, so which will help you to opt the tax benefit as well. So that could be one of the reason again. So that is what we choose to invest in different funds, right? So there are different types of funds which is available in the industry, right? So first of all, so this was just the basic orientation, right?
बट हम क्या देखने क्या वाले हैं, मैंने इसको प्लस में ऐसे क्यों लिखा, what is the reason behind this, why I have written fund plus accounting such a word in this way. Definitely there is some reason, right? Accounting, we know about this, right? We know about this. अगर आप if you are not from accounting background, if you are not from the commerce background, still you will be able to understand it. तो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी मैं चीजें बहुत सिंप्लीफाइड करके बताने वाला हूँ। ये सेशन में हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, मैं इंग्लिश में ले सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी कंसर्न टू स्पीक इन इंग्लिश टिल द last moment of this session, right? But my motto is, or my ultimate goal is, you should understand. You should at least gain some knowledge, right? There would be crowd who those are not fluent in English, right? They are not able to or grab the knowledge from the English language. So that is what I have decided. I'll in between or meanwhile I'll try to speak in Hindi as well, right? So that will help you to understand about the fund and plus accounting part, right? सो पहले हम डिस्कस करेंगे फंड के बारे में. व्हाट इज फंड? इट्स अ मनी, राइट? राइट. And what we gonna be do with this money? Definitely invest, right? So if we invest, then definitely we earn some, what return, or I would say income. All right, we're gonna be earn this part, and if we earn income, then we'll have to distribute it, right? We're gonna be these things, right, with a particular fund, right? और और सिंपल वे से फंड नहीं समझता है, पैसा है, राइट? पैसा है, ये कैसे अकाउंट रहेगा, राइट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट विथ लाइक नंबर लाइक दैट यू कैन अज्यूम. यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स रहेंगे, राइट? राइट. जस्ट एज्यूम एक फंड मैनेजर यहाँ पर, he just announced like 1000 crore mutual fund scheme, right? Scheme, or that you can see vehicle, investment vehicle, right? Or investment pool that you can see, right? He is gonna be pull the money from investors and he gonna be invest in different industries, right? So we'll discuss that part as well, right? Why we wanted to discuss this particular part? There is a story, right? So once we understand the each and everything about the fund part, then we gonna be understand about what is accounting, right? And how we gonna be manage all those things in a practical way with the different industries, right? Then we'll have a clear projection about it. अगर हम सडनली आप बोली कि भाई शॉर्ट में करो और उसका सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में बताओ, तो वो समझेगा नहीं, फिर स्टोरी में समझ में आएगी. स्टोरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है. तो ये 1000 का फंड तो अभी क्रिएट हुआ है, उसने अनाउंस कर दिया स्कीम. तो फिर अनाउंस करने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर लाइक यू गाइस, लाइक आई, और लाइक माय रिलेटिव दैट आई वुड से योर फ्रेंड्स, राइट? दोस पीपल आर लाइक इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम. उन्होंने बोला है कि उनका फंड अच्छे खासे रिटर्न देगा, एटलीस्ट 50% और 15-16 व्हाट्सएवर इट इज, 1 ईयर 2 ईयर्स में देगा. तो व्हाट यू हैव डिसाइडेड, you are here like you are here, then you decided to invest like 200 crore,
राइट। यहाँ पे मैं हूँ समझो, मैंने डिसाइड किया कि आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट ओनली 5,000 पर मंथ, राइट। वो अपनी अपनी बात होती है। कोई यहाँ पे है 300 300 करोड़, राइट। कोई यहाँ पे है CR करोड़, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ये फिगर भी तो मैच करानी होती है, ठीक है। 4,95,000, राइट। मतलब इतना पैसा डालना चाहता है। इससे हम जस्ट इमेजिन कि 1 करोड़ की जगह हम 1,000 रुपए की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई है जो 200 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता है। कोई है 200, 300, 500 प्लस 50, जस्ट अज्यूम इट दिस वन इज 50, राइट। कोई है कि चलो 450 इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट। तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग तरह से आते हैं, राइट। इनको द फंड मैनेजर इज लाइक the middleman between the retail investors and the different issuer companies, right? Finally, once he collect 1,000 rupees in his kitty, means इस अकाउंट पे, जब फंड अकाउंटिंग के अकाउंट पे जब 1,000 जमा हो जाएंगे फ्रॉम अ डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स, राइट। दोज आर द इन्वेस्टर्स। वो लोग सब्सक्राइब करेंगे म्यूचुअल फंड को, राइट। जब सब्सक्राइब करेंगे मतलब व्हाट दे गोना बी डू, वो एक यूनिट खरीदेंगे। यूनिट यानी कि जस्ट जस्ट एज्यूम इट, अभी इन्वेस्टर तो उसको मिल गए, मतलब रिटेल इन्वेस्टर मिल गए, 1,000 की स्कीम है। 1,000 को जस्ट उसने क्या किया कि अभी के हिसाब से, मतलब अभी जस्ट ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो मानो कि उसने हर एक यूनिट की प्राइस रखी है वन वन रुपीज, 1 यूनिट 1 रुपीज, राइट। लाइक द रेशियो इज लाइक 1:1, राइट। तो उसने ये रखा है क्योंकि ये बिगिनिंग और ओरिजिनल प्राइस है, राइट। ये ओरिजिनल प्राइस है, राइट। जस्ट लॉन्च हुई थी स्कीम, उसकी मतलब जस्ट इनिशियल स्टेज की एक प्राइस है, राइट। ये अभी उसको एक मतलब कोटेशन मिला, उसने एक रफली कोट कर लिया, एंड उसने यूनिट लोगों में बेच दिए। अभी लोगों ने जब बेच दिए मतलब क्या किया लोगों ने, किसी ने जैसे बोला कि आपने पैसे दिए, पैसे दिए मतलब आपने क्या कर, नॉर्मली इफ यू थिंक you just wanted to invest in equity, right? There are many platforms, right? Zerodha, even SBI security account, HDFC security account that you can open and then directly you can invest, right? You can just you need to add fund from bank account to demat account or trading account. So once you add it, you can directly invest any kind of securities that you want, right? So there is no such a obligation on you. But here समथिंग इज लाइक आप जस्ट यूनिट खरीदोगे, जैसे कि मैंने बोला था कि चलो आई राइट नेम समथिंग, राइट। देन राजू, समीर, राइट। समीर सब्सक्राइब 250 यूनिट, Raju subscribe that I would say 350 unit, right? Steve subscribe is around 200, and Hanmant is also subscribed 200 unit, right? So as the price already is defined, right? 1:1. So it means, so if Samir subscribe, then he'll have to pay 250 to whom, right? This is rupees, right? Then 350 रुपीज, राइट। समझ में आ रहा है? मतलब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अकाउंटिंग की हम बात करने वाले हैं, तो अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये जब हम उसका पोस्टमार्टम सुनेंगे ना, मतलब इन डिटेल्स, देन वी गोना बी अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली फंड अकाउंटिंग। देन ये 200 रुपीज, राइट। सो ये फंड हम मतलब उसके बदले में जब हमारे पास एक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड का अकाउंट है, या फिर डिमैट अकाउंट है, या फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसमें एक्चुअली जो फंड मैनेजर की टीम रहेगी, ये इतनी क्वांटिटी यानी कि यूनिट तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट करती है, राइट। उसके बदले में
तुम्हें इतने पैसे पे करना है, राइट, इन्वेस्टेड मनी, ये तुम्हारा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट मनी, और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जस्ट यू हैव क्रेडिटेड, मतलब यहां पैसा आ गया, जस्ट इमेजिन कि ये पैसा यहां पे आ गया, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया, पे किया, तो इतना पैसा जम गया इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास। सो नाउ इज द जॉब ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर को फंड मैनेजर बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोलेंगे, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर भी बोलेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो वन कैन बी ऑल इन अ one manager can play different roles with the different organizations, so जरूरी नहीं कि हम फंड मैनेजर अलग होगा क्या, इन्वेस्टमेंट मैनेजर अलग होगा क्या, कोई नहीं, और अपने जैसा ही जो बंदा रहेगा, एक आईआईएम या फिर बड़े अच्छे कॉलेज से उसने अपना एकेडमिक्स पूरा किया, या फिर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा रहेगा जो कि सालों से ट्रेडिंग कर रहा था या फिर म्यूचुअल फंड में था, वो अभी जंप हुआ, तो वो बंदे जैसे मैनेजर पोजीशन के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, जिसका fundamental or quantitative analysis is very strong. Only those guys can be preferred to to be a or to hire as a fund manager, that I would say, right? सो वो इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे, जिस प्रोसेस में काम कर रहे, करना चाहते हो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जब पैसा आ जाता है तो ये बंदा क्या करेगा, राइट। जस्ट एक मैं स्लाइड दूसरी बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। तो जब उसके पास पैसा आएगा, ही हैज अ ऑप्शन, राइट। सो अभी स्कीम कौन सी थी, सो दैट मैटर मोस्ट, राइट। स्कीम कौन सी थी, ठीक है। स्कीम के अलग अलग नाम्स होते हैं, जैसे कि बैलेंस फंड, राइट, बैलेंस फंड है, इक्विटी फंड है, राइट, उसको भी या फिर ब्लू चिप फंड है, ब्लू चिप फंड है, राइट, ग्रोथ फंड है। ग्रोथ फंड एंड इक्विटी फंड, आई वुड से there would be like similarity around 90 to 95%, right। ग्रोथ फंड है, कोई सेक्टरल फंड है, सेक्टरल इट मीन्स कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, उन्हीं में पैसा इन्वेस्ट होता है, राइट। या फिर इंश्योरेंस सेक्टर, उन्हीं मतलब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, राइट। या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड भी है, राइट, फंड है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट, या फिर इनकम फंड है, पेंशन फंड है, राइट। ये सब तरह के फंड्स है, इनमें हम मतलब जब एक्चुअली व्हेन वी गोना बी वर्क विद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, तो हम ये नाम सुनेंगे, देखेंगे, राइट। वहां पे सिस्टम में डेटा ऑलरेडी फीड होता है, तो हम देखेंगे वहां पे कि टाइप्स ऑफ फंड कौन से टाइप का है क्या नहीं, ठीक है। हमारे लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट। तो ये सब टाइप्स ऑफ फंड्स है, राइट। ये कहीं ना कहीं पे जाके इनका अल्टीमेट गोल है टू इन्वेस्ट, राइट। जब कोई इन्वेस्ट करता है, मतलब हम सब्सक्राइब क्यों करते हैं म्यूचुअल फंड, हमें मतलब जो मैनेजर्स होते हैं दे कमिट अस, राइट, सो दे गोना बी प्रोवाइड रिटर्न, राइट। रिटर्न प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। रिटर्न प्रोवाइड करने वाले कितना, 10%, 20%, 22%, व्हाट्स इट इज, ये करने वाले। अगर ये पैसा समझो उन्होंने आपसे पैसा लिए खुद के जेब में रख दिया, तो रिटर्न आएंगे, राइट। रिटर्न करने के लिए दे हैव टू इन्वेस्ट, राइट। कहीं ना कहीं पे जाके उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे फिर, राइट। इन्वेस्ट करने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको, बॉन्ड, राइट, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं इसमें, टाइप लिख लेना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। देन इक्विटी, राइट, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, ये भी होता है तरीका इन्वेस्ट करने का। देन उसके बाद बोल सकते हैं आप, इवन कंपनियां लोन भी देती है, जैसे कि जैसे कि प्राइवेट इक्विटी पार्ट है, हम ये भी चीज डिस्कस करेंगे, प्राइवेट इक्विटी, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी पार्ट है, राइट। या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हुआ, राइट।
डिपॉजिट हुआ या फिर डिबेंचर हुआ, राइट, डिबेंचर हुआ, राइट, यही सब इंस्ट्रूमेंट, या फिर इवन दे कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटी, राइट, कमोडिटी हुआ, राइट, ओवरसीज में अगर कोई मतलब है कि कोई कंपनी करेंसी में ट्रेड हुआ, राइट, करेंसी भी वो खरीद के रख सकते हैं, करेंसी एंड ऑल, राइट, गोल्ड हुआ, मतलब कमोडिटी में गोल्ड भी आता है। तो ये उनके इंस्ट्रूमेंट्स है पूरे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ये पूरे इंस्ट्रूमेंट है। ये पैसा जो जाके है ना, इन्वेस्टमेंट जो कि 1000 जो भी है, आप उसको करोड़ समझिए या फिर आप थाउजेंड समझे, दैट डजंट मैटर, राइट, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यू कैन assume it anything that you want, right, there is no obligation from my end, right, so just imagine आप ये पैसा मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ये पैसा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में दे गोना बी इन्वेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में लोग पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, बट एक्चुअली इक्विटी वगैरह कौन इशू करता है, द कम, या फिर बॉन्ड वगैरह कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर टीसीएस और इन्फोसिस के जैसे कंपनीज, राइट, एचडीएफसी बैंक एंड ऑल, राइट, यही होते हैं, मतलब यानी कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, दैट आई वुड से. Well, reputed companies can issue such an instrument, right, in the market if they want to raise the fund for their business requirement or expansion, or that I would say development and all. If they are looking, the fund from such external sources, right? So they can announce or they can issue bond or equity, preference shares or private equity, to the investor or to the fund manager, and fund manager gonna be invest in their organization, right? तो वो लोग जाके फंड मैनेजर जाके इन्हीं इंस्ट्रूमेंट में जाके पैसा अपना लगाते हैं, मतलब यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपने यहाँ पे समझो किसी इक्विटी फंड में पैसा 500 रुपीज लगा दिया, राइट, तो वो 500 जाके अल्टीमेटली गोना बी इन्वेस्ट इन इक्विटी, राइट, बट यहाँ पे एक ही है कि मतलब यू हैवन डिसाइडेड कि कौन सी कंपनी, जैसे कि मानो यू हैव अ डिमैट अकाउंट, राइट, सो आपको समझो कि इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है, राइट, सिर्फ आपको 500 जाके इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है, तो आपने कर दिए, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, राइट, आपने किसी मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट नहीं की। बट अगर म्यूचुअल फंड में जाते हो और अपने 500 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, तो वो 500 रुपीज म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करोगे तो इक्विटी, मतलब एक ही कंपनी की इक्विटी में नहीं जाएंगे। म्यूचुअल फंड मैनेजर जैसे कि एचडीएफसी है, मतलब यानी कि सिंपली चलो नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे नाम तो समझ में आएगा इन अ बेटर वे, लाइक वो मतलब जब आप 500 रुपीज यहाँ से आप पाइपलाइन में डालोगे, तो पाइपलाइन में डालने के बाद यहाँ पर दैट यू कैन सी, जैसे कि कोटक बैंक, राइट, रिलायंस, राइट, टाटा, टाटा की कोई भी कंपनी उठा लो यार, बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि समझो मानो टाटा मोटर्स, राइट, राइट, देन आई वुड से एल आई सी, हाउसिंग डिपार्टमेंट उनका प्रोबेबली दे आर इन लिस्टेड, जैसे कि हाउसिंग फिनांस, ठीक है, तो ये कंपनीज है, रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज है। आपने यहाँ पे पैसे डाल दिए पाइपलाइन में, जैसे ही डाले तो म्यूचुअल फंड मैनेजर, एफएम मैनेजर आपके पैसे दाव पे लगा देगा इन कंपनियों के शेयर्स में, राइट, यहीं पे कहीं लगा देगा पैसा। समझो इस मानो कि इसमें उसने 100 रुपए लगा दिए, इसमें 100 रुपए लगा दिए, टाटा अगर ज्यादा ही भरोसेमंद है तो बैलेंस रखना चाहता है तो उसमें 200 लगा देगा, एंड इसमें उसने 50 रुपए लगा दिए, जस्ट जो 50 है तो वो लिक्विड कैश रखता है, ताकि भविष्य में कोई एक्सपेंसेस होंगे, राइट, कॉस्ट होंगी, रेगुलेटरी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है, इवन दो जिसकी म्यूचुअल फंड मैनेजर की फीस होती है, राइट, तो ये लिक्विड कैश 550 रुपीज भी रखा है उसने अपने अकाउंट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, जहाँ पे उसने पुल बनाया था ना उसमें, ताकि ये डेली एक्सपेंसेस वो उसी से करे, ठीक है, तो ये चीजें भी उसने रखी है, तो ये पैसा मतलब इसी से वो अपना मैनेज करेगा 50 रुपीज से, तो यानी कि मोटा मोटा orally apparently if you can see, all right, so 450 rupees has been invested in across the different different companies from different different sectors, तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट, राइट,
तो मतलब ये आपको समझ रहा है चीजें कि कैसे पैसा डाइवर्ट होता है, रूट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जाके इन्वेस्ट होता है। अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट की। तुम्हारा समझो डिमैट अकाउंट है, राइट, और एक ट्रेडिंग अकाउंट है। उसी को चलाने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, ताकि आप यहां से फंड विथड्रॉ करें, फंड ऐड करें, राइट, फंड ऐड एंड विथड्रॉ। उसी के साथ साथ जब कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होता है, यानी कि डिविडेंड अनाउंस हुआ, राइट, कोई ड्रीप या फिर सीएसओ अनाउंस हुआ, ड्रीप अनाउंस हुआ, उसमें जो कैश पोर्शन बचता है, कैश पोर्शन या फिर रिडम्पशन, यू नो वहां पर रिडम्पशन हो रहा है, ठीक है, ये हुई चीजें, या फिर मानो कंपनी ने कोई लिक्विडेशन प्रोसीड किया है, लाइक उसमें कुछ कंसिडरेशन देना चाहती है, मतलब पैसा देना चाहती है, पैसा देना चाहती है कंपनी तुम्हारे अकाउंट से शेयर्स लेके। तो उस केस में क्या होता है कि जो हम बैंक अकाउंट लिंक करते हैं उसमें पैसा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, कंपनी मतलब कोई तो प्रोसेसर रहेगा, वो प्रोसेस करेगा तो ये पैसा अकाउंट में आ जाता है, राइट। तो सिंपली मतलब ब्रोकर, जिस ब्रोकर के पास हमने अकाउंट निकाला था, तो वहां पे जो मतलब एक्चुअली इश्यूअर या फिर कस्टडी रहेगी, जो डायरेक्टली इश्यूअर के अकाउंट से वो डायरेक्टली डेबिट फंड मार देते हैं उनके अकाउंट को, और अपने अकाउंट को क्रेडिट मार के ये अपने अकाउंट में क्रेडिट दिखने लगता है, ठीक है। तो ये ऐसा पूरा प्रोसीड्स होता है ये इंडिविजुअल अकाउंट का। बट डिमैट अकाउंट का, सॉरी, बट जब हम म्यूचुअल फंड या फिर हेज फंड या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड जैसे फंड में जब हम काम करने लगते हैं या फिर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ना पैसा रूट होने लगता है, राइट। क्योंकि पहला पैसा जब अनाउंस होगा तो पहले तुम्हारे म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आएगा, म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आएगा तो मैनेजर देखेगा कि कितना बेनिफिट आया, उसको देखेगा कि फिर से उसको री इन्वेस्ट करना होता है, ताकि वो आपकी वैल्यू बढ़ाने वाला है ना, तो उसको फिर से सोचना पड़ेगा कि फिर जो डिविडेंड मानो 500 के ऊपर 100 रुपए आया, राइट, 100 रुपए आया तो ये किस में इन्वेस्ट करूँ, तो ये फिर से इन्वेस्ट देखेगा कि और कोई सेक्टर की कंपनी है जिसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फिर ये 100 रुपीज उसमें करेगा, राइट। तो ऐसे आपकी वैल्यू ऐड हो जाती है, राइट। जैसे कि 500 प्लस 100 प्लस कुछ आता है, तो ऐसे ऐसे होके एक आपकी अच्छी खासी वैल्यू एक मैच्योरिटी पे मिल जाती है, राइट। पर ये इक्विटी जब हम यहाँ डीमैट इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे इसकी ऑब्लिगेशन है नहीं है, राइट। डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है, फिर से आप उसको ऐड करोगे, आप देखोगे, इन्वेस्ट करना है करोगे, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझे पूछते तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे जब भी पैसा आता है डिविडेंड वगैरह तो मैं फिर से आई ट्राई टू इन्वेस्ट इन इट, क्योंकि मुझे और पोर्टफोलियो बढ़ाना है, अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो मैं वैसे करता हूँ। तो ये ऐसे इंडिविजुअल इट्स योर कॉल। बट फंड मतलब मैनेजर की हम बात करें तो वो ओनर है, तो वो देखेगा कि क्या करना है उसके साथ, राइट। क्योंकि आपने जो आपका पैसा है ना कमिट किया है कि मैं 10 साल रखूंगा, राइट, या फिर 5 साल रखूंगा, क्योंकि स्कीम सब्सक्राइब करते टाइम ही वो चीजें करनी होती है ना, तो वो देखेगा क्योंकि आप उसने आपको कमिट किया है कि 10 to 20%, राइट, वो चीजें आपको देने वाला है 20 to 50%, राइट। तो मतलब यानी कि डिविडेंड से लेकर जितने भी बेनिफिट्स आते हैं तो वो उसके ऊपर काम करेगा, उसको री इन्वेस्ट करेगा, आगे देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट हुआ। तो ये ऐसे पैसा आपका हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में हेज फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, राइट, पैसा इन्वेस्ट होता है। अभी अगर एट द एंड ऑफ दिस द स्टोरी मैंने म्यूचुअल फंड पूरा इन डिटेल्स एक ओरिएंटेशन दिया है कि म्यूचुअल फंड जो होगा ऐसे ऐसे, मतलब उसका नेचर है, हेज फंड होगा। हेज फंड और म्यूचुअल फंड का काफी सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर डिफरेंस क्या है, राइट। हेज फंड और म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो मतलब क्या है, फर्क जानना है, हेज फंड एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल का मतलब है कि मतलब एक साथ आना, राइट। हेज का मतलब है कि रिस्क कम करना, रिस्क कम करना। यही हुआ कि मतलब ऑलरेडी फंड है बट उसकी मैं रिस्क कम करना चाहता हूं, रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन। मानो मैं वॉरेन बफे का एग्जांपल लूंगा, राइट। उसके पास बहुत सारा फंड है, उस फंड को काम लगवाना है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, बट उसकी रिस्क मतलब यानी कि एनीवेज अगर खुला पैसा पड़ा रहेगा तो टैक्स के साथ साथ बाकी सारे मतलब पैसा बढ़ेगा नहीं।
तो उस फंड की जो रिस्क है मुझे कम करना है और रेगुलर रिटर्न भी निकालना है, राइट, रेगुलर रिटर्न, तो उसको बोलते हैं हेज फंड। ये बट देखो, गरीब लोगों के पास कोई ऐसा फंड देखोगे आप 1 करोड़ 2 करोड़ इन देयर अकाउंट, वी कांट सी दैट, राइट, मतलब हमारे पास ज्यादा पैसा है ही नहीं, तो यानी कि सिंपली अगर उसको आप मतलब लेमन लैंग्वेज में, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये रिच लोगों के लिए है। इंडिया की बात करो तो एटलीस्ट 1 CR आपके पास होना चाहिए ऐसे, तभी दैट यू गोना बी इन्वेस्ट इन हेज फंड, राइट। सो यूएस में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स है, 1 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन, ये हुआ तो ही दैट यू कैन चूज टू इन्वेस्ट इन हेज फंड। एंड ये है, मतलब अगर देखो स्कीम का दोनों का भी बजट उतना ही होगा, 1000 CR, राइट, 2000 CR, मतलब 1000 करोड़ 2000 करोड़, म्यूचुअल फंड का भी और हेज फंड का भी, बट एट द एंड ये एक साथ आकर इन्वेस्ट करने वाले लाखों लोग हैं, राइट। 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर, जितने लोग करना चाहते हैं उतने लोग कर सकते हैं, तो ये एक साथ आकर ये 1000 2000 CR का टारगेट मेड करके म्यूचुअल फंड मैनेजर दे गोना बी इन्वेस्ट, राइट। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देखती है हाउ दे गोना बी मैनेज इट और हाउ दे गोना बी इन्वेस्टमेंट। हेज फंड के कोई टाइप्स वगैरह नहीं है, राइट, कि मतलब बहुत सारे सब लोग तुम्हारे दिमाग में हो सकता है, यू मे हैव अ क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेज फंड, राइट। तो टाइप्स की वगैरह वहां पे जरूरत है भी नहीं है, इट इज जस्ट हेज फंड मीन्स we use this strategy, it is a strategy that we use to reduce the risk, you know, from the fund portfolio, that I would say, or the risk which is involved, potential risk which is involved in fund, that you're going to be reduced or that you're going to be mitigate somewhere, right, in order to avoid such as huge losses, right, from the uncertainties or many other, there are the external or exogenous factors that are going to be affect on fund, and that is what we try to reduce the risk, right, which is involved in our fund, to wo hai hedge fund. And when we talk about mutual fund, it is like it is a fund vehicle, right? Investment manager gonna be pulled the money from a different investor, right? And they're gonna be invest in in a different mutual fund schemes or different financial instrument. So that is the difference between hedge fund and ये. तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये poor and ये है sorry ये rich and this is for poor. पुअर लोगों के लिए, हम जैसे गरीब लोगों के लिए जो 20 25 30 लाख 2 लाख जो भी अर्न करते हैं मंथली, द म्यूचुअल इट्स फॉर दैट, राइट। तो ये दोनों का मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। तो गाइस हम लोगों ने मतलब एक म्यूचुअल फंड समझने की कोशिश करी है, राइट। तो हम आगे मतलब जाने से पहले जस्ट आई वांटेड टू लिंक the this practical knowledge with many other things as well, right? तो मैंने जब बोला कि डिविडेंड की बात करी, इक्विटी में अगर म्यूचुअल फंड का इक्विटी में जाएगा, राइट, यहाँ पे म्यूचुअल फंड है या फिर हेज फंड है या फिर प्राइवेट इक्विटी है, राइट, ये अगर ये तीनों फंड है, इन तीनों का पैसा अगर जाके इक्विटी में इन्वेस्ट होने वाला है, राइट, इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में जाके इन्वेस्ट होने वाला है, फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट होने वाला है, राइट, या फिर डिबेंचर में इन्वेस्ट होने वाला है, राइट, या फिर कॉल लोन की हम बात करेंगे या फिर लोन सिंडिकेशन की बात करेंगे, राइट, लोन सिंडिकेशन की हम बात करेंगे, अगर इनमें जाके अगर इन्वेस्ट होने वाला है, तो मुझे एक बात बताइए, जब कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होगा, इक्विटी अफेक्ट होता है कि नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स अफेक्ट होता है कि नहीं होता है, राइट। जब कोई कंपनी समझो कि पब्लिक कंपनी है, इंटरेस्ट अनाउंस करती है क्वार्टरली, राइट, राइट, जब अनाउंस, इस पे बॉन्ड पे इफेक्ट होगा कि नहीं, डिबेंचर पे इफेक्ट होगा कि नहीं, कोई रिस्ट्रक्चर कराना चाहती है, कोई अपना डेप्ट घटाना चाहती है, काफी सारी वजह है, ठीक है, काफी सारे रीजन है, तो उसको हम कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं, मतलब यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारे म्यूचुअल फंड पे होगा कि नहीं। डिविडेंड कॉर्पोरेट एक्शन के अंडर आता है, राइट, राइट इशू तुम्हारे कॉर्पोरेट एक्शन के अंडर आता है, राइट, या फिर तुम्हारा व्हाट आई वुड से बोनस इशू, राइट, बोनस इशू, राइट, स्टॉक स्प्लिट, राइट, देन तुम्हारा स्टॉक डिविडेंड, राइट, या फिर तुम्हारा और क्या चीज हो सकती है, काफी सारे टाइप्स है यार, मर्जर है, राइट, राइट,
ये सारी चीजें, ये अगर आप इवेंट कहीं किसी कंपनी में हो, इफ यू आर एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग टीम, राइट, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आप ये चीजें यहाँ पे करते हो, तो यानी कि जो भी आप यहाँ पे करते हो उसका इम्पैक्ट या तो हेज फंड पे जाएगा, या फिर म्यूचुअल फंड पे जाएगा, या फिर प्राइवेट इक्विटी पे जाएगा, राइट, या फिर नॉर्मली ब्रोकर रहेंगे, प्राइम ब्रोकर्स बोलते हैं उसे, या फिर ब्रोकर्स बोलते हैं, राइट, इंटरनेशनल ब्रोकर्स हो गए, जो भी हुआ, तो इन सब पे जो होल्ड करते हैं पोजीशन इन पे जाएगा ना, राइट। यानी कि अगर मैं कॉर्पोरेट एक्शन का बंदा हूँ तो मेरा मेरा मतलब मुझे इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये जो मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ इसका जो इम्पैक्ट है वो किन किन स्टेक होल्डर्स के ऊपर जाता है, राइट, कौन से स्टेक होल्डर्स कौन से लाइफ साइकिल में, या फिर कहाँ पे अड़े हुए, कहाँ पे है वो लोग, where they are, right? So we should know all the information. We should know, all the knowledge about all the stakeholders which are involved in the corporate action as well. But हम वो सीखते नहीं है चीजें, right? मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ. बट जो मैंने रियलिटी दिखाई आपको यही है कि अगर आप ये कहीं पे, काफी सारे मतलब मैं इंडस्ट्री लोगों से भी मिल चुका हूँ, उनका अनुभव जान चुका हूँ, बट वो उनके अलावा ना उनको कुछ भी नहीं घंटा पता इसके बारे में। मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन का बंदा है तो बोलेगा कि मुझे इनके बारे में नहीं पता, राइट, या फिर ये इनके हेज फंड के बारे में नहीं पता, म्यूचुअल फंड के, अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है तो बोलेगा कि मुझे कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में नहीं पता, राइट, प्रोसेसिंग कैसे करते, क्या कैसे करते। जब कॉर्पोरेट एक्शन का प्रोसेसिंग होगा, कोई डिविडेंड प्रोसेस करेगा कॉर्पोरेट एक्शन टीम का बंदा, तब जाके यहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे जाएगा तो ही वो इन्वेस्टर के मतलब रिटेल इन्वेस्टर है, उनके अकाउंट में जाएगा ना बेनिफिट, राइट। तो ये ऐसे साइकिल काम करता है, और मैटर करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। अगर म्यूचुअल फंड की कंपनी में काम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एएमसी, राइट, लाइक एनटी, राइट, नॉर्दर्न ट्रस्ट। और अभी हर एक मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक के पास एक डिपार्टमेंट होता है, वहां पे काम कर रहे हो, मतलब आप म्यूचुअल फंड के यहाँ पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी अगर आप सीए डिपार्टमेंट देखोगे, यहाँ पे जो बेनिफिट प्रोसेस होता है ना, उसका वैलिडेशन करेंगे, राइट, वैलिडेशन करेंगे, रिकंसिलिएशन करेंगे, हम काफी सारी चीजें वेरीफाई करेंगे, उन्होंने कितनी फीस काटी, कितना टैक्स लगाया, हर चीज वेरीफाई करेंगे। यानी कि अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेस के ऊपर कहीं पे काम करोगे, मानो कि आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी, यानी कि जस्ट एज्यूम बीएनवाई में हो, राइट, यहाँ पे यू आर हियर, बट स्टिल यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एनटी एज वेल, राइट। तो ये चीजें आपको लिंक करने आनी चाहिए। आप hedge fund company में हो, NT again is the part of hedge fund company as well, right? Apex, that is the good example that I can put here. Apex institution, right? They have a many hedge fund client, right? Even Apex is the one of the largest institutions which they have asset in trillions they are managing hedge fund and all. तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे रख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे समझो आप यही कहीं काम कर रहे हो तो, एंड आपने प्रीवियसली कॉर्पोरेट एक्शन में काम कर चुके हो, तो सेम चीजें यहाँ पे दैट यू हैव टू डू हियर एज वेल विद हेज फंड कंपनी। रिकंसिलिएशन पार्ट हुआ, अभी रिकंसिलिएशन में हम बोलते कि व्हाट, मतलब वी ट्राई टू विजुअलाइज दोस थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे इन आवर माइंड, राइट। फिर हम वो लिंक नहीं कर पाते थे वहां पे कैसे होगा, प्रोसेस अलग होगा, अरे क्या प्रोसेस अलग होगी यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनीवेज डिविडेंड का मतलब क्या है कि हम पैसा प्रोसेस करने वाले हैं सामने वाले को, वी ट्राई टू डिसबर्स द बेनिफिट टू द द बेनिफिशियरीज, so that is our ultimate goal and that is why we are here, right? But anyways, in a practical way हम तो प्रोसेस भी नहीं करते हैं, वो कस्टडियन डायरेक्टली डेबिट मार देता है पैसे, जस्ट व्हाट वी गोना बी डू, वी ट्राई टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हियर जस्ट फॉर ऑडिट पर्पस एंड जस्ट फॉर to check the performance and other things, right? On the basis of that investment manager can take the decision and they can invest the fund or manage the fund accordingly. तो ये ultimate goal होता है, इसलिए ये just the instructions that we are recording in our system, that we are entering input in our system, right? यही काम होता है, पर जब एंटर करने के बाद फिर हम देखते भी है कि वो सही तरह से एंटर नहीं हुआ। मतलब जैसे कि मानो 100 रुपए डिविडेंड मिला, 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए डिविडेंड मिला, राइट, उसके ऊपर 10% टैक्स लगा, तो यानी कि टोटल 90% ही नेट पैसा हो रहा है, राइट, डिविडेंड अमाउंट, तो 90 बराबर से आया कि नहीं, फिर 10% क्यों लगा। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं पे करनी होती है when you will be in a corporate action team or hedge fund team or mutual fund team, or you're working with some other prime brokers and all, everywhere that you can see everything that is linked to each other। हम इसको अगर बाइफरकेट करते हैं तो हमें फिर समझने में दिक्कतें होती है, तो हमें ये बाइफरकेट नहीं करना है। कॉर्पोरेट एक्शन कोई प्रोसेस नहीं है, एक इवेंट्स के टाइप्स है, मतलब कोई भी अगर
किसी भी कंपनी के लाइफ्स में, यानी कि हमारे लाइफ्स में अगर कुछ आंट सांड हो जाता है, मानो कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, मानो कि हमने कुछ घर लिया, मानो कि हमने कुछ कार ली, मानो कि हमने कुछ नया गोल्ड लिया, इन्वेस्टमेंट करी, तो हमारे पर्सनल लाइफ के इवेंट्स है द सेम वे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की लाइफ्स या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लाइफ्स में भी होता है। उनको पैसे की जरूरत लगेगी, कभी ज्यादा पैसा होगा, कभी वो किसी को उधार देंगे, कुछ भी करेंगे, कभी सीईओ अपॉइंट होगा, कभी कंपनी नेम चेंज करना चाहेगी, कभी कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी होती है किसी और कंपनी के साथ। ये सब चीजें कॉर्पोरेट एक्शन में आती है। तो बहुत सारे ज्ञानी महंत है जो सिर्फ उनको टाइप्स ही पता है, मतलब ये बोलेंगे कि अगर ये चीज आई तो कॉर्पोरेट एक्शन है, नहीं भाई, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, राइट। राइट। तो वो चीजें भी आती है, मतलब कहीं ना कहीं पे हम वी आर लैक टू ग्रैब द नॉलेज फ्रॉम द सोर्सेस, राइट। एंड इवन हम एक बार जैसे जैसे मतलब पाइपलाइन में बैठ जाते हैं ना, तो हम एक ही दिशा से जाना चाहते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन से दैट वी ट्राई टू रन। अगर कॉर्पोरेट एक्शन में है तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं कि वो फंड हम जब प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है, तो उसकी चीजें कहाँ पे कुछ हो रही है, और उनके जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी। अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन को अच्छे से समझते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, राइट, अगर ये हमको अच्छे से आता है, वी हैव अ ट्रस्ट ऑन आवर नॉलेज एंड एबिलिटीज, देन गाइस ट्रस्ट मी, जो आप कॉर्पोरेट एक्शन नाम के अंडर जो किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो ना, सेम चीजें आप यहीं पे करोगे। बस उसको जिस मतलब टाइटल के अंडर आप करने जा रहे हो उसका नाम बदलेगा, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शन को इंस्टेड दैट दे कैन कॉल म्यूचुअल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, राइट। तो उस नाम से डरने की जरूरत नहीं है। As simple as that, what is the ultimate goal? Ultimate goal is to process the benefit, right? So once you processed, it should be, very transparent way, right? There is no additional cost has been added, or there is no additional taxes has been added, right, or deducted from the income, right? That you gonna be check. मतलब आप यहाँ पे भी डिविडेंड प्रोसेस कर, अभी एक लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, चलो ठीक है, अगर आपको फिर से भी अगर नहीं समझा, स्टिल दैट आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड यू कि कैसे अंडरस्टैंड करना है चीजें। अभी आप बोलोगे कि यार अभी भी मुझे नहीं समझा, ये है सीए टीम, राइट, ये है तुम्हारी म्यूचुअल फंड टीम, उसको फंड टीम नहीं बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तो है। ये फंड टीम है। यहाँ से कॉर्पोरेट एक्शन टीम में चल हम बात करते हैं, कंपनी लेंगे, टीसीएस की बात करेंगे हम। मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है, इसमें टीसीएस हमेशा एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है। टीसीएस की बात करेंगे, टीसीएस ने 100 रुपए डिविडेंड दिया, तो आप कॉर्पोरेट एक्शन के टीम में हो, कहीं ब्रोकर में, तो आपने 100 रुपए डिविडेंड यहाँ प्रोसेस कर दिया। ये प्रोसेस कर दिया मतलब आपने क्या कर दिया कि म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया, और उनको प्रोसेस कर दिया 100 रुपए, यहाँ पे आया 100 रुपए। तो यहाँ पे आया मतलब यहाँ पे समझो 10% टैक्स लगा था, राइट। तो ये जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है ना, उसका भी he is also responsible to to reconcile the tax portion, right, how much tax has been applied to this particular dividend, right। तो मुझे बात बताओ, अगर कोई यहाँ पे बंदा काम कर रहा है, तो उसको जो पैसा आने वाला है, क्या वो टैक्स रिकनसाइल नहीं करेगा, कोई टैक्स वैल्यू मतलब वैलिडेट नहीं करेगा? डेफिनेटली ही हैज टू डू इट। तो मतलब यही हुआ कि अगर आपको टैक्स रिकन्सिलिएशन कॉर्पोरेट एक्शन टीम का पार्ट वो करने आता है, तो वही चीज यहाँ पे भी करनी है। बट नेम जस्ट चेंज हो रहा है, राइट, जस्ट द नेम गोना बी चेंज, राइट। यहाँ पे म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन टीम है। तो काफी सारे रिलेवेंट चीजें हैं, ठीक है। सो मैं ज्यादा आज इस सेशन के ऊपर बात नहीं करूंगा, आई हैव आल्सो वेरी लिमिटेड टाइम, सो दैट इज व्हाट this was just orientation session, right? You just to go through it, right? You have any doubts in this orientation session, just you can post me the update, right? I'll share my email id, or I'll share my uh, phone number over there. Just you can ping me also on WhatsApp, or on other things, right, like Telegram as well, that you can just ping me or post me the the uh, comment what you're looking for, or if you're not able to understand such a content from this entire orientation session, right, I'll again try to explain you in a very the different way. I'll try to put very practical examples as well, and that I'll try to give the knowledge in a very different way as well, right. I have a many ways that I can provide to you. uh, the next is the important is, जब हमने यहाँ तक जो चीजें we have just discussed about the fund basic funds and all types and funds, and right, and little bit difference about hedge fund and mutual fund.
बट ये जो सेशन रहेगा जस्ट देख लेना, वो तुम्हें हेल्प करेगा। उसके बाद हम अकाउंटिंग पोर्शन और फंड प्लस अकाउंटिंग, तो ये लिंक करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं पे। एंड हम विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब दो से चार सेशन मैं इस पे शेड्यूल करूंगा। ये तो एक ओरिएंटेशन पार्ट, तो आप देख लीजिए। You have still, you may have any questions, right? You will have any questions, just you can ping me or just you can put it in a comment. And apart from this, agar if you are looking for any training or the discussion on any other subject, just you can ping me on, just put a comment, in a comment section. Definitely I'll try to post or shoot video on that particular portion as well, right? So abhi ke liye main guys, I'll have to take uh, you know leave because I have some other tasks or other things that I have to do. Those are also important. Bye अभी के लिए, चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।